So, well, students, in last class, we had discussed about the profit and loss appropriation account, how to prepare profit and loss appropriation account. I have taught, and also you have understood what items should be written over there and how to present the items into the profit and loss appropriation account. As you know, nothing is to be allowed to the partners without the partnership agreement. So whatever given in partnership deed or agreement, we give accordingly. And at last, we find the divisible profit, and that divisible profit should be distributed among the partners according to partnership deed in profit sharing ratio. Today, we will study about a partner's capital account. As you know that after appropriation of the net profit between the partners, the next step is to prepare partner's capital account. And in partner's capital account, we transfer all the profit and loss relating to the partner. Okay. So, but here we have to study two methods of partner's capital account. So there are two types of capital account. One is fixed capital account. Second one is fluctuating capital account. You can see on your screen. So under fixed capital, it is saying that in this method, we prepared two accounts. One is partners capital account. Second one is partners current account, right? So it is clear that in fixed capital, we prepare two accounts, capital account and current account. The second capital method is fluctuating capital. So in this method, we prepare only one account, that is partners capital account. We do not prepare current account. Okay. So now the first of all introduction is clear ki in partners capital, if it is fixed, we prepare two account, name the two account is partners capital and partners current. And in case of fluctuating capital, we prepare only and only partners current capital account. Okay, now let's move for the next slide. Here student, we will see in fixed capital. So fixed capital is saying that in this method, partners capital account does not change year to year. कह रहा है कि partners capital account change नहीं होता. This is why it is called fixed capital account. क्या चेंज नहीं होता? तो कैपिटल अकाउंट मीन्स व्हाट? कैपिटल अकाउंट का बैलेंस, जो कैपिटल अकाउंट में बैलेंस दिया रहता है, बाई बैलेंस विडी या टू बैलेंस विडी, ये सब आता है, ये सब चीजें एज इट इज रहती है एवरी ईयर, ईयर टू ईयर. इट डज नॉट चेंज जनरली. दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट. सो फर्दर आई एम एक्सप्लेनिंग हियर. In partners capital account, we record only capital contributed by partner. So capital account में क्या लिखते हैं कि चेंज नहीं होता, सिर्फ कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय पार्टनर, यानी जब पार्टनर बिजनेस स्टार्ट करता है तो उसने कितना कैपिटल उसमें इन्वेस्ट किया, कितना कैपिटल लगाया, वो सिर्फ उस कैपिटल को लिखा जाता है कैपिटल अकाउंट में. दूसरी चीज, एंड ड्राइंग मेड फ्रॉम कैपिटल परमानेंटली, नॉट फॉर पर्सनल यूज टेम्परेरली. अब इसका मतलब क्या हुआ? अभी तक तो आप ड्राइंग से ही पढ़े हो कि व्हेन ओनर withdrew for personal use, whether it is in cash या kinds. So this is called drawing. Yes, of course, this is drawing. But sometimes partners want to reduce their capital balance permanently. This is not the purpose of personal use. This is purpose of permanently withdrew. यानी मान लो कि मिस्टर ए का कैपिटल 15 लाख है, मिस्टर बी का 10 लाख है. अब दोनों चाहते हैं कि हम लोग अपनी कैपिटल इक्वल करेंगे, यानी कि दोनों का कैपिटल मिलाकर 20 लाख इक्वल प्रोपोर्शन में होना चाहिए.
सो अब ए का 15 लाख है, बी का 10 लाख है, तो ए क्या करेगा, 5 लाख विड्रॉ कर लेगा, तब तो जाके 10 लाख दोनों का इक्वल होगा। सो कभी जब परमानेंटली कैपिटल को बैलेंस यानी रिड्यूस करने के लिए विड्रॉ किया जाता है, तो दिस इज व्हाट ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल। और ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल को सिर्फ कैपिटल अकाउंट में दिखाते हैं। अगर पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग किया जाता तो उसको हम कैपिटल अकाउंट में नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पर्सनल यूज के लिए टेम्पररी होता है, वो कुछ समय के लिए वो पैसा विड्रॉ किया फिर बाद में री इन्वेस्ट कर देते हैं, नहीं करते तो कैपिटल से कम होता है, देखा जाएगा। सो ड्राइंग एक होता है पर्सनल यूज और एक होता है परमानेंटली। क्लियर है कि कौन सा ड्राइंग कैपिटल से माइनस होगा फिक्स कैपिटल के केस में, जो परमानेंटली होगा। ठीक है, तो ये तो बात समझ में आ गई। अब ये भी बात समझ लो कि जो ड्राइंग मेड होगा फ्रॉम कैपिटल परमानेंटली, क्या ये हर साल होगा? नो, ये शायद ही कभी 2-4 साल 10 साल 5 साल में एक बार अगर कुछ ऐसा सिचुएशन आता है तो होगा। सो इसलिए कैपिटल अकाउंट जो शुरू में इन्वेस्ट किया गया वो एज इट इज रहता है लाइफ टाइम, तो इसीलिए इसको फिक्स कैपिटल कहा जाता है, क्योंकि और कुछ इसके अंदर लिखते ही नहीं है। ठीक है, हाँ एक चीज और लिखा जा सकता है, जैसे स्टार्ट में अगर पार्टनर्स ने 10 लाख रुपए से बिजनेस स्टार्ट किया, 10 लाख मिला करके, बाद में बिजनेस इनका एक्सपेंड किया, पैसे की और जरूरत थी, तो ये लोग और एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट कर दिया। तो जब कैपिटल एडिशनल के फॉर्म में इन्वेस्ट करेंगे तो एडिशनल कैपिटल भी एवरी ईयर तो इन्वेस्ट कराए कोई करेगा नहीं, जब भी होगा ये किसी एक समय में 2-4 साल 5 साल में ही होगा। तो जब एक पार्टनर एडिशनल कैपिटल इन्वेस्ट करता है या परमानेंटली विथड्रॉ करता है कैपिटल से, तो ही कैपिटल अकाउंट में चेंजेस होते हैं, अदरवाइज फिक्स कैपिटल कभी भी चेंज नहीं होता फिक्स कैपिटल के केस में। तो तुमसे पूछा जा सकता है कि इन केस ऑफ फिक्स कैपिटल गिव एनी टू सर्कमस्टांसेस इन विच फिक्स कैपिटल कैन बी चेंज्ड। सो आप बताओगे first circumstances is when partner introduce additional capital during the year or when partner withdrew from capital permanently। ये दो कंडीशन है जबकि कैपिटल अकाउंट चेंज होगा, अदरवाइज फिक्स कैपिटल में कभी भी कैपिटल अकाउंट चेंज नहीं होता, इसीलिए इसका नाम फिक्स्ड कैपिटल पड़ा हुआ है। दूसरा चीज इसमें और क्या बनाते हैं, सो इन पार्टनर्स करेंट अकाउंट, जैसा कि हम लोगों ने पढ़ा पिछले स्लाइड में कि पार्टनर्स कैपिटल जब फिक्स्ड होता है तो दो अकाउंट बनाते हैं, एक कैपिटल अकाउंट और एक करेंट अकाउंट। सो कैपिटल अकाउंट की तो बात कर लिया, अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट क्या होता है। सो पार्टनर्स करेंट अकाउंट में वी रिकॉर्ड ऑल प्रॉफिट एंड लॉस टू द पार्टनर्स ड्यूरिंग द ईयर एंड ड्राइंग मेड फॉर पर्सनल यूज। यहाँ कौन सा ड्राइंग दिखाते हैं करेंट अकाउंट में, जो पर्सनल यूज के लिए है, जो परमानेंटली है वो कैपिटल अकाउंट में जाता है फिक्स कैपिटल के केस में। सो अब कौन सा प्रॉफिट लॉस, तो आपको याद होगा कि ये जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, मैं स्लाइड ला रहा हूँ, ये देखो, जैसे सैलरी टू पार्टनर्स, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, है ना, प्रॉफिट ट्रांसफर्ड, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये सारी चीजें जो हैं पार्टनर्स के करेंट अकाउंट में जाता है। यानी ऑल प्रॉफिट एंड लॉस, यानी जो हम एप्रोप्रिएशन करते हैं प्रॉफिट का बिटवीन द पार्टनर्स, वो प्रॉफिट लॉस जो भी होता है वो सब पार्टनर्स करेंट अकाउंट में जाएगा, क्योंकि वो हर साल कुछ ना कुछ प्रॉफिट लॉस होता है। तो जो ऐसे आइटम है जिसकी वजह से हमारा कैपिटल अकाउंट चेंज हो सकता है, उसको कैपिटल अकाउंट में लिखते ही नहीं है, उसको हम करेंट अकाउंट में लिखते हैं सेपरेटली, इसीलिए हमारा कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड होता है। तो ये पार्टनरशिप डीड में लिखा होता है कि कैपिटल फिक्स्ड होगा या फ्लक्चुएटिंग। सो फिक्स्ड होगा तो दो अकाउंट मेंटेन किया जाएगा, फ्लक्चुएटिंग होगा तो एक अकाउंट। आई होप फिक्स कैपिटल का कॉन्सेप्ट जो है अभी थोड़ा बहुत समझ में आया होगा कि कौन कौन से अकाउंट बनाते हैं और किसमें क्या दिखाते हैं। अब आते हैं हम लोग आगे फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। सो फ्लक्चुएटिंग नाम से पता चल रहा है जिसका बैलेंस चेंज होता रहता है, फ्लक्चुएट होता रहता है। सो कह रहा है इन दिस मेथड वी रिकॉर्ड इनिशियल कैपिटल ऑफ पार्टनर, यानी जो शुरू में इन्वेस्ट किया वो कैपिटल लिखते हैं कैपिटल अकाउंट में, एंड ऑल प्रॉफिट एंड लॉस, सारा प्रॉफिट एंड लॉस जो इनको मिलता है यानी पीएल अप्रोप्रिएशन में, एंड ऑल काइंड ऑफ ड्राइंग वेदर इट इज परमानेंट और पर्सनल यूज टेम्पररी, सारा ड्राइंग इन द सेम अकाउंट, यानी उसी अकाउंट में लिखते हैं। कौन सा अकाउंट में, उसी अकाउंट का मतलब क्या हुआ, कैपिटल अकाउंट।
ड्यू टू दिस, जिसके कारण बैलेंस ऑफ कैपिटल अकाउंट चेंजेस एवरी ईयर, जिसकी वजह से इनका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस हर साल चेंज होता है, क्योंकि हर साल प्रॉफिट लॉस उसमें लिखते हैं, ड्राइंग लिखते हैं, कैपिटल जो लगाया वो तो लिखते ही हैं। तो दिस इज व्हाई इट इज कॉल्ड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, राइट। रीजन क्या है फ्लक्चुएटिंग कहलाने का? क्योंकि इसमें कैपिटल तो लिखते हैं, साथ में हर साल का होने वाला प्रॉफिट लॉस सब उसी में रिकॉर्ड करते जाते हैं, जिसकी वजह से उसका बैलेंस चेंज हो जाता है। और फिक्स कैपिटल में कुछ लिखते ही नहीं है कैपिटल के अलावा, इसलिए उनका कैपिटल फिक्स रहता था, बैलेंस फिक्स रहता था। बट यहाँ पर बैलेंस चेंज हो जा रहा है इसीलिए इसको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं। अब इसके अंदर कह रहा है कि वी प्रिपेयर ओनली वन अकाउंट, दैट इज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। वी डू नॉट प्रिपेयर करेंट अकाउंट। तो इसमें हम सिर्फ एक ही अकाउंट बनाते हैं जिसका नाम है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। इसमें वी डू नॉट प्रिपेयर करेंट अकाउंट, क्योंकि करेंट अकाउंट की जरूरत ही नहीं पड़ी, क्योंकि करेंट अकाउंट का जितना भी प्रॉफिट लॉस है वो सब कैपिटल में ही लिख देते हैं फ्लक्चुएटिंग के केस में, तो करेंट अकाउंट की कोई जरूरत नहीं है। इफ देयर इज नो एनी अदर इंफॉर्मेशन गिवन, अगर कोई अलग से इंफॉर्मेशन नहीं दिया है कि कैपिटल आपका फिक्स्ड है या फ्लक्चुएटिंग है, सो इस केस में हम एज्यूम क्या करेंगे? सो वी विल एज्यूम दैट द कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग। हम लोग ये एज्यूम करेंगे कि कैपिटल हमारा जो है वो फ्लक्चुएटिंग है ठीक है। सो आई होप यहाँ तक समझ में आ गया कि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल के केस में सिर्फ कैपिटल अकाउंट बनेगा और कुछ नहीं दिया है इंफॉर्मेशन, तो हम ये मानकर चलते हैं कि कैपिटल हमारा फ्लक्चुएटिंग। अब हम लोग थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं इसके फॉर्मेट में। ओके, तो पहले फिक्स कैपिटल का फॉर्मेट हम लोग डिस्कस करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो नाउ सी व्हेन कैपिटल इज फिक्स्ड, तो देखो कैपिटल जब फिक्स है तो पहले पार्टनर्स कैपिटल बनाएंगे, फिर पार्टनर्स करेंट अकाउंट बनाएंगे। सो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में देखो, अगर बिजनेस पहले से अभी स्टार्ट किया, मान लो पहला साल है ये, सो हम घर से पैसा लाएंगे तो बाई कैश लिखेंगे, या बैंक के थ्रू ला रहे हैं चेक के थ्रू तो बाई बैंक लिखेंगे। लेकिन अगर हमारा बिजनेस पहले से एग्जिस्टिंग है, चल रहा था, तो ओपनिंग बैलेंस रहा होगा तो उसका ओपनिंग बैलेंस लिखेंगे बाई बैलेंस बीडी। तो तीनों में से कोई एक चीज लिख लेंगे, बाई कैश या बाई बैंक या बाई बैलेंस बीडी। अगर क्वेश्चन में कह रहा है कि दे हैव स्टार्टेड बिजनेस बाय इन्वेस्टिंग रुपीज, तो बाई बैंक या कैश। बट अगर कहेगा कि देयर कैपिटल वाज स्टूड ऑन दिस डेट, इसका मतलब ओपनिंग बैलेंस है, तो उसको बैलेंस बीडी लिखेंगे। अब नंबर ऑफ पार्टनर्स मैंने सिर्फ दो लिया है फॉर शेक ऑफ कन्वीनियंट, ए एंड बी। सो जो ए का कैपिटल होगा ए में और बी का कैपिटल होगा बी में लिखेंगे, राइट। अब इसमें और कुछ तो लिखते नहीं है, प्रॉफिट लॉस कुछ भी नहीं लिखते, तो यही जो बैलेंस होता है ये क्लोजिंग बैलेंस हो जाता है। तो टू बैलेंस सीडी हम लोग लिख देते हैं। जैसे कि आप देखो यही बैलेंस हमारा रहता है, तो जो ओपनिंग बैलेंस है वही क्लोजिंग बैलेंस है, इसलिए कैपिटल अकाउंट को फिक्स्ड कहते हैं, क्योंकि बीच में और कोई चेंजेस तो होता नहीं है, ठीक है। लेकिन अभी अभी मैंने बताया कि कैपिटल अकाउंट कैन बी चेंज्ड इन टू सर्कमस्टांसेस। क्या है वो? सो पहला सर्कमस्टांसेस है कि जब एक पार्टनर एडिशनल कैपिटल को इंट्रोड्यूस करता है ड्यूरिंग द ईयर, तो अगर बीच में इंट्रोड्यूस करेगा वो पार्टनर, तो हम लोग क्या करेंगे? तो आप देखो, अगर बीच में पैसा लगाता है किसी साल, तो लिखेंगे बाई कैश, या चेक से लाएगा तो बैंक अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। ये हम ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं फर्दर कैपिटल, ठीक है। अगर से बीच में और कैपिटल लगाया तो तब चेंज होगा, क्योंकि ये भी ऐड हो जाएगा तो बैलेंस चेंज हो जाएगा। समटाइम्स कभी कभी पार्टनर अपने कैपिटल के बैलेंस को कम करने के लिए परमानेंटली विड्रॉ करते हैं कैपिटल से, तो उसको विड्रॉ करेंगे तो वहां ड्राइंग वर्ड नहीं लिखेंगे जो परमानेंटली टू कैश या बैंक, ठीक है, ये लिखेंगे। सो देखो ये क्या है, ये तुम्हारा ड्राइंग है, ड्राइंग फ्रॉम कैपिटल। और एक चीज याद रखो, जो ड्राइंग कैपिटल से किया जाता है परमानेंटली, उस ड्राइंग पे इंटरेस्ट चार्ज नहीं किया जाता, और जो पर्सनल यूज के लिए ड्राइंग किया जाता है उस पे इंटरेस्ट चार्ज किया जा सकता है। बट अगर परमानेंटली विड्रॉ किया जा रहा है, तो उस केस में आपको
कोई इंटरेस्ट पे करने की जरूरत नहीं। तो अब देखो आप, जनरली ओपनिंग बैलेंस या क्लोजिंग बैलेंस होता है, बट सम केसेस लाइक 2 cases when partners introduce additional capital या when partner withdrew from capital as permanent basis, तो जो पार्टनर विड्रॉ कर रहा है उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज हो जाएगा और जो एडिशनल कैपिटल ला रहा है उसका कैपिटल अकाउंट का बैलेंस चेंज हो जाएगा। सो दिस इज व्हाई वी कॉल इट फिक्स्ड कैपिटल। ओके, सो यहाँ पर तुम्हारा जो होता है वो फिक्स्ड कैपिटल होता है। अब लास्ट में हम लोग यहाँ टोटल इसमें कर देते हैं, ठीक है, मालूम ही है आप लोग को। अब आते हैं हम लोग करेंट अकाउंट में। सो आई होप कैपिटल अकाउंट क्लियर हो गया है। अब पार्टनर्स करेंट अकाउंट। सो पार्टनर्स करेंट अकाउंट के लिए आपको क्या करना है, फॉर्मेट देखो बेटा सेम होगा, सब नेम चेंज होंगे। जैसे ऊपर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट है तो यहाँ पर पार्टनर्स करेंट अकाउंट। अब करेंट अकाउंट का कभी भी कैश या बैंक से नहीं स्टार्ट होता, ये हमेशा बैलेंस रहता है, ओपनिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस अगर क्रेडिट में दिया है, जनरली क्रेडिट ही होता है। अगर ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट है तो बाई बैलेंस भी डी लिखेंगे, और ओपनिंग बैलेंस अगर डेबिट दिया हुआ है तो चूंकि इसका ओपनिंग बैलेंस कुछ भी हो सकता है, क्रेडिट भी हो सकता है, डेबिट भी हो सकता है, ठीक है। तो जो ओपनिंग बैलेंस दिया हो, ठीक है, ओपनिंग डेबिट बैलेंस में लिख दे रहा हूँ, ठीक है, और इस साइड जो ओपनिंग होगा वो क्रेडिट बैलेंस होगा, ठीक है। ओके, सो कोई एक चीज दिया होगा, या तो क्रेडिट या डेबिट, या ऐसा हो सकता है किसी एक पार्टनर का क्रेडिट बैलेंस हो और किसी दूसरे का डेबिट बैलेंस हो, राइट। अब ये तो हो गया बैलेंस की बात। अब पूरे साल भर में कितना इनको प्रॉफिट, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनके लिए इनकम होता है, तो जब भी पार्टनर्स को इनकम मिलेगा तो उनका कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होगा, क्योंकि आपको पता है कि इनकम क्रेडिट होता है। सो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अगर से है तो देंगे, बाई सैलरी है तो देंगे, बाई कमीशन अगर से पार्टनर को देना है तो देंगे हम यहाँ। फिर लास्ट में प्रॉफिट एंड लॉस जो हम बांटते हैं, तो बाई प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जो डिविजिबल प्रॉफिट के रूप में जो बांटते हैं वो इधर लिखेंगे, ठीक है। तो इधर क्या लिखेंगे, इधर अगर ड्राइंग किया है पर्सनल यूज के लिए, सो ड्राइंग होगा, फिर टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ठीक है। और फिर अगर से लॉस हुआ है तो लॉस के केस में एप्रोप्रिएशन नहीं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही रहता है। तो ये सारी चीजें हैं। तो देखो एक साल में जो भी मिलने वाला प्रॉफिट लॉस है, तो अब आप खुद से देखो कि अगर हम ऐसा करते हैं तो इनका बैलेंस चेंज हो जाएगा ना। तो अब हम लोग करेंगे क्या कि यहाँ पे टोटल कर लेते हैं, किधर का ज्यादा है वो साइड पहले लिख करके और फिर दोनों साइड बैलेंस कर लेंगे। तो बैलेंस में भी तुम्हारा क्रेडिट बैलेंस भी आ सकता है, डेबिट भी। तो जनरली तो क्रेडिट बैलेंस आता है, बाई बैलेंस बीटी तो टू बैलेंस सीडी ही आता है, लेकिन जरूरी नहीं है। आपको चेक करना पड़ेगा कि कौन सा बैलेंस है। क्लोजिंग बैलेंस ये है, मैंने इधर लिख दिया। तो क्लोजिंग बैलेंस कब इधर होगा, इधर होने का मतलब, लिखने का मतलब कि आपका क्रेडिट बैलेंस है, और इधर लिखने का मतलब कि आपका डेबिट बैलेंस है, ठीक है। तो कोई एक होगा, एक ही साइड होगा, चाहे इधर हो चाहे इस साइड हो, ठीक है। तो ये आपका हो गया करेंट अकाउंट। सो बैलेंस सीडी इधर आएगा चाहे इधर होगा, तो कोई एक साइड होगा। अगर क्रेडिट साइड ज्यादा है तो इधर होगा, और डेबिट साइड ज्यादा है तो इस साइड होगा बैलेंस। तो पहले तो आपको हमने आज पार्टनर्स कैपिटल में फिक्स कैपिटल के बारे में बताया। यहाँ तक आप लोगों का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हो। Now this is fluctuating capital. So in case of fluctuating capital, if you are going to start this year the business, so in capital account you will be writing by cash or bank, by which you are going to start or you have started. And by balance BD we will write when our business is already existed in the market. So
ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शुड बी देयर। सो ओपनिंग बैलेंस हम लोग यहाँ लिखेंगे, फिर क्लोजिंग बैलेंस यू नो कि कहाँ लिखा जाता है कि जस्ट जिस साइड भी बैलेंस आए तो ये क्लोजिंग हो गया। बट ड्यूरिंग द ईयर कैपिटल के अलावा जैसे उसको क्या मिल सकता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को मिलता है, फिर सैलरी अगर मिलने का प्रोविजन है तो सैलरी भी देंगे उस पार्टनर को, कमीशन पार्टनर का हो गया, और क्या मिल सकता है, प्रॉफिट में शेयर। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ये प्रॉफिट में शेयर हो गया। इस साइड क्या लिख सकते हैं, इस साइड अगर उसने ड्राइंग किया है किसी भी प्रकार का ड्राइंग, किसी प्रकार का ड्राइंग किया, फिर उस पर अगर इंटरेस्ट के लिए प्रोविजन क्वेश्चन में है तो हम लोग वो भी चार्ज करेंगे। शेयर इन लॉस, अगर लॉस हुआ है तो उसमें शेयर देंगे हम। ठीक है, सो इसी तरह अगर कोई पार्टनर कोई एसेट लेता है, यानी जब कैपिटल अगर प्लस करना है, देखो स्टूडेंट एक चीज हमेशा याद रखो, अगर कैपिटल को प्लस करना है तो क्रेडिट में लिखेंगे, और कैपिटल को माइनस में करना है, ठीक है, कैपिटल को अगर माइनस करना है तो हम डेबिट में लिखेंगे। तो ये याद रखो, यानी कि कैपिटल अकाउंट प्लस तब होगा जब क्रेडिट करेंगे, और माइनस कब होगा जब डेबिट। प्लस कब होता है, जब इनकम पार्टनर्स को मिलेगा तो प्लस होगा, और एक्सपेंसेस उनसे चार्ज करना है जैसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग या शेयर इन लॉस, तो वो कैपिटल को रिड्यूस करता है, ड्राइंग रिड्यूस करता है, तो माइनस डेबिट करेंगे। ठीक है, अगर कोई पार्टनर कभी किसी एसेट्स को टेक ओवर कर लेता है, ठीक है, अगर मान लो कोई पार्टनर ने एसेट टेकन, कोई भी एसेट ले लिया, ठीक है, एसेट लिया पैसा नहीं दिया, तो अब बताओ कि एसेट लिया तो उसके पैसे से उसके कैपिटल से माइनस होगा ना, तो माइनस करने के लिए उसके कैपिटल अकाउंट में जो एसेट्स लिया, जैसे मशीन लिया, फर्नीचर लिया या स्टॉक लिया, तो उसका नाम लिख देंगे और डेबिट कर देंगे, एंड लास्ट में बैलेंस आ जाएगा आपका। सो दिस इज व्हाट द कैपिटल अकाउंट, एंड दिस इज वेरी सिंपल। आपने देखा कि जो करेंट अकाउंट बनाया वही हमारा कैपिटल अकाउंट जैसा है, बस फर्क है कि यहाँ जो बैलेंस होता है वो कैपिटल का बैलेंस होता है, यानी कि दोनों को इसमें क्या किया, जो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल फिक्स कैपिटल में हम लोगों ने पढ़ा था, ध्यान से समझो, जो फिक्स कैपिटल में देखो यहाँ ओपनिंग बैलेंस है, और बाकी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, सैलरी, ये सारी चीजें, ये सब अलग अलग कर दिया, और ओपनिंग बैलेंस को अलग। बट फ्लक्चुएटिंग में क्या है, ये ओपनिंग बैलेंस और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दोनों एक में ही मर्ज कर दिया गया, सब एक ही साथ लिख दिया गया, इसीलिए इसको हम लोग फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कहते हैं, क्योंकि इसके बैलेंस जो है चेंज होते रहते हैं। सो स्टूडेंट समझ में आया यहाँ तक, बोलिए, इज इट क्लियर? क्लियर था। सो अब हम लोगों को कोई एक कल का जो क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था, अच्छा देखो आप लोग, अगर ये एक मिनट, कैपिटल अकाउंट, सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन सॉल्व किए थे, दो क्वेश्चंस, जिसमें दोनों ही एक्सरसाइज के थे और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल था दोनों में। तो पहले हम लोग उसी क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। आपके पास अगर ओल्ड बुक है या न्यू बुक है, सब में वही क्वेश्चन होगा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल एक्सरसाइज से फंडामेंटल वाला स्टार्ट होगा पहला क्वेश्चन। इसमें बोला था प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, तो हम लोग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने जा रहे हैं, ठीक है, उसी क्वेश्चन से। सो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये फ्लक्चुएटिंग है क्योंकि कुछ बोला नहीं, मैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, बुक से है डीके गोयल के प्रैक्टिकल क्वेश्चन।
कितने पार्टनर है उस क्वेश्चन में? 2 पार्टनर है, ए और बी। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, वन मिनट। तो हम लोग फॉर्मेट आप लोग भी बना लो। सो पर्टिकुलर्स और ए बी। ठीक है, पर्टिकुलर्स ए बी, राइट। तो आप देखो इस क्वेश्चन में यू विल सी दैट कि कह रहा है कि ऑन 1 अप्रैल 2018 ए एंड बी कमेंस्ड बिजनेस, यानी इन लोगों ने बिजनेस स्टार्ट किया है। तो यहाँ बैलेंस नहीं होगा, अपनी स्टार्ट कर रहे हैं तो बाई बैंक करके लिख सकते हैं। ठीक है, तो कितने कैपिटल से स्टार्ट किया? 6 लाख एंड 2 lakhs। ठीक है, तो इनका जो कैपिटल है वो 6 लाख है एंड 2 lakhs, राइट। अब इसके बाद ये तो ओपनिंग कैपिटल हो गया। अब इन लोगों को क्या क्या हम लोगों ने दिया है? सो इसमें कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट 6%। तो आप पीएल अप्रोप्रिएशन देखा होगा आप लोगों ने पहले का, नहीं आप खुद भी कैलकुलेट कर लो। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हम यही देंगे, ठीक है, और एट द रेट ऑफ 6%। तो 6 लाख का 6% कितना हो जाएगा? 36,000। ठीक है, आप पीएल अप्रोप्रिएशन में भी दिए होंगे, आप बाद में चेक कर लेना, नहीं मैं दिखा दूंगा। फिर इसका 6% 18,000, 2 6 12। ठीक है, अब कह रहा है कि इसमें ड्राइंग्स किया है इन लोगों ने 60,000 और 40,000 रिस्पेक्टिवली। सो ड्राइंग हम इधर लिखेंगे, ड्राइंग किया है 60,000 एंड 40,000 रिस्पेक्टिवली। ओके, डन, ये भी हो गया। और क्वेश्चन में कह रहा है कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी चार्ज करना है। तो कितना करना है क्वेश्चन में दिया हुआ है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो बिंग ए के लिए लिखा है, ए बिंग 2000 एंड बी का 1000। सो ए को 2000 मिलना है और बी को 1000 मिलना है, राइट। ये भी हो गया। और क्या कुछ बोला है? बोल रहा है एज्यूमिंग दैट दे आर इक्वल पार्टनर्स। तो जो प्रॉफिट बच जाएगा लास्ट में उसको हम इक्वली बांटेंगे। सो इक्वली बांटने के लिए हम लोग किस साइड लिखना है? क्रेडिट में लिखना है शेयर ऑफ प्रॉफिट। सो बाय प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, तो ये कितना आएगा बेटा आप लोगों को मैं दिखा देता हूँ। ये देखो आप लोग उस दिन का क्वेश्चन एक है, ये सेम इलस्ट्रेशन है ये। सो आप देखो कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ये दिया हुआ है, सैलरी भी देना है, देखो हम लोग मिस कर दिए हैं, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे लिया 67,500, 67,500 जो डिविजिबल प्रॉफिट है वो है। सो वो देना है, तो उसके लिए हम लोग चलते हैं, पहले सैलरी दे लेते हैं, किसको देना है। क्वेश्चन में कह रहा है कि 60,000 पर एनम सैलरी बी को मिलना है। ठीक है, तो बी को पहले सैलरी दे लेते हैं। ठीक है, 60,000 पर एनम है, तो इनको 60,000 दे दिया जाए। ठीक, अब लास्ट में हम लोग टोटल करेंगे, पहले प्रॉफिट बांट ले। सो प्रॉफिट 67,500 देना है ईच, क्योंकि जो भी प्रॉफिट बचा है पीएल अप्रोप्रिएशन आप बनाए होंगे तो आप देखेंगे उसमें 1,35,000 प्रॉफिट बचा हुआ है, तो उसको इक्वली बांटना है। ये हो गए, अब इसके टोटल आप कर लो। तो टोटल करने में कितना आ रहा है? 279, पहले 100, ये 3, सॉरी
5 हो गए, 279 हो गए, 17167 और 613 का 3, 3 और 3, सो 3,39,500 ये आ रहा है। वही इधर भी लिख लेते हैं, इधर कितना आ रहा है 6 लाख, इसमें भी जोड़ दो, 90 9 7 6 13, यानी कि 7,03,500 चेक कर लो। 5 हो गया, 6 7 13 4 6 10, अच्छा ठीक है। सो यही दोनों पैसा हम लोग इधर लिख लेंगे, बैलेंस आ जाएगा। सो स्टूडेंट अब आप लोग को बैलेंस करना है, तो बैलेंस CD, अब डिफरेंस निकाल के आप लोग लिख लो। सो एक आ रहा है 6,41,500 रुपए, आप मिसिंग फिगर आप फाइंड करो, 6,41,500